پائیدار معاشی ترقی کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات ناگزیر۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی معاشی بہتری کا اعتراف کیا ہے۔ پاکستان کو برآمدات کا مرکز بنانا ہے۔ ڈیجیٹائزیشن سے معیشت میں شفافیت آئے گی۔ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 9 لاکھ فائلرز کا اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں فیوچر سمٹ کے 9ویں ایڈیشن کی تقریب سے خطاب۔ حکومت کاروبار کے لیے سازگار ماحول اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم، نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے ان پر سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ معاشی سرگرمیوں سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ برآمدات اور سرمایہ کاری کے فروغ سے ہی پائیدار معاشی استحکام ممکن ہے۔ مسابقتی ماحول سے کاروباری سرگرمیوں کو وسعت ملے گی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا کراچی میں فیوچر سمٹ سے خطاب۔ آئین اور قانون کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ اپوزیشن کو ترمیم پر بولنے کا مکمل حق ہے۔ قانون سازی میں اتحادیوں کی مشاورت شامل ہوتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی جلد ہونی چاہیے۔ آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے لیے 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ اب ہم دوسرے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال۔ صدر آصف علی زرداری کی قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی سے دوحہ میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ اسرائیلی جارحیت کے دوران سلامتی کے تحفظ کے لیے قطر کی قیادت کے اقدامات کی ستائش۔ فیفا ورلڈ کپ کی کامیاب میزبانی اور ایونٹ کے دوران کیے گئے مثالی اقدامات کی بھی تعریف۔ سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک کا 556واں جنم دن۔ بابا گرو نانک عظیم مسلح اور نظریاتی رہنما، ان کا امن، رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کا پیغام ایک منصفانہ اور پرامن دنیا کے قیام کے لیے مشعل راہ۔ پاکستان تمام مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ کرتارپور راہداری قائم کر کے مذہبی رواداری کی منفرد مثال قائم کی ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتریوں کی ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کے موقع پر سکھ برادری کو دلی مبارکباد۔ گرو نانک کے جنم دن پر سکھ برادری کی پنجاب آمد پر جی آیا نو۔ بابا گرو نانک نے محبت، ہمدردی، انسانیت اور بردباری کا درس دیا۔ پنجاب کے ہر شہری کے لیے مساوی سہولتوں اور حقوق کے علمبردار ہیں۔ سکھ برادری کو تقریبات میں بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گردواروں کی دیکھ بھال، تزئین و آرائش اور سیکورٹی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی بابا گرو نانک کے جنم دن پر دنیا بھر کی سکھ برادری کو مبارکباد۔ سکھ بہن بھائیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور کے مختلف علاقوں میں نادرا اور پاسپورٹ آفس کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ نادرا سینٹر اور پاسپورٹ آفس میں موجود شہریوں سے ملاقات کی۔ شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے موقع پر ہی احکامات دیے۔ شہریوں کو اپنی دستاویزات کے حصول میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ خصوصی افراد کا خصوصی پروٹوکول کے ساتھ کام فی الفور نمٹایا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی اور ٹیلی کام شہزاد فاطمہ خواجہ کا 26ویں ساؤتھ ایشین ٹیلی کمیونیکیشن ریگولیٹرز کونسل کا افتتاح۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ویژن کا تسلسل ہے۔ ڈیجیٹل تعاون اور سرحد پار کنیکٹیویٹی علاقائی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ کنیکٹ پاکستان 2030 کے تحت ہر فرد تک تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی کا ہدف ہے۔ پاکستان میں 200 ملین موبائل اور 150 ملین براڈ بینڈ صارفین ہیں۔ پاکستان علاقائی ڈیجیٹل تعاون اور مشترکہ ترقی کے لیے ہر سطح پر تیار ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے: شہزاد فاطمہ۔ SIFC کے تعاون سے گرین کارپوریٹ لائف سٹاک انیشیٹو کا پاکستان کے ڈیری سیکٹر کے لیے تاریخی اقدام۔ کلاؤڈ ایگری گروپ کے اشتراک سے امریکہ سے درآمد شدہ مویشی کل پاکستان پہنچیں گے۔ دودھ کی پیداوار اور ڈیری مصنوعات کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہوگا۔ گرین کارپوریٹ لائف سٹاک انیشیٹو جدید بریڈنگ ٹیکنالوجی، جینیاتی بہتری اور مختلف تربیتی پروگراموں کے ذریعے ملکی ترقی کے لیے سرگرم۔
نیو یارک میں میئر کے تاریخ ساز انتخابات، مسلم امیدوار زہران ممدانی کامیاب۔ صدر ٹرمپ کے حمایت یافتہ نیو یارک کے سابق گورنر اور آزاد امیدوار اینڈریو کومو سمیت ریپبلکن حریف کرٹ سلوا کو شکست دی۔ 1969 کے بعد میئر کے انتخابات میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔ انتخابات میں 20 لاکھ سے زائد ووٹرز کے ساتھ سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ریکارڈ۔ زہران ممدانی 1892 کے بعد شہر کے میئر بننے والے سب سے کم عمر شخص ہیں۔ نیو یارک میں اسلامو فوبیا کی کوئی گنجائش نہیں، نفرت اور تقسیم کی سیاست کی اجازت نہیں دیں گے۔ نیو یارک سٹی کو تارکین وطن نے مضبوط کیا، عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا، شہر کو ورکنگ کلاس کے لیے آسان بنائیں گے۔ یہ شہر آپ کا ہے، جمہوریت بھی آپ کی ہے اور مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ 1 جنوری کو میئر کا حلف اٹھاؤں گا۔ نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کا وکٹری خطاب۔ ورجینیا اور نیو جرسی کی ریاستوں میں بھی ڈیموکریٹس نے میدان مار دیا۔ ڈیموکریٹ امیدوار ایپی گیل ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر، جبکہ غزالہ ہاشمی پہلی مسلم نائب گورنر منتخب۔ نیو جرسی میں گورنر کے انتخاب میں بھی ڈیموکریٹ امیدوار میکی شیرل کامیاب۔ اسرائیلی فورسز کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، صہیونی فوج کا شفاعت پناہ گزین کیمپ پر بھی چھاپا، آنسو گیس کا اندھا دھند استعمال۔ اسرائیل نے جیلوں میں شہید ہونے والے 45 فلسطینیوں کی میتیں وزارت صحت کے حوالے کر دیں۔ غزہ میں خوراک سمیت امدادی سامان کی فراہمی میں رکاوٹیں برقرار۔ اسرائیل کے لیبنان پر بھی فضائی حملے، 2 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ یوم شہدائے جموں، انسانیت کے قاتل بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کا دن۔ نومبر 1947 بھارت کی ریاستی سرپرستی میں ظلم و بربریت کا سیلاب۔ 123 سے زائد مسلمانوں کے گاؤں صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ بھارتی صفاق حکمرانی میں مسلمان ہونا اور پاکستان سے الحاق جرم تھا۔ مسلمانوں پر جاری ظلم و بربریت کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کبھی کم نہیں کر سکتی۔ کشمیریوں کی جدوجہد ایک دن ضرور آزادی کا سورج طلوع کرے گی۔ پاک فوج کے زیر اہتمام جانی کھیل بنوں میں امن و امان کے قیام کے لیے جرگہ، قبائلی نمائندین، مشران اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ قبائلی رہنماؤں کا حکومت اور سیکیورٹی فورسز سے بھرپور تعاون کے عزم کا اظہار۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میران شاہ نے قبائلی نمائندین کے کردار کو سراہا۔ جرگے میں سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردی کی روک تھام اور فلاحی منصوبوں پر غور۔ عوام کے تعاون سے امن و ترقی کا سفر کامیابی سے جاری ہے، جی او سی میران شاہ۔ ایف سی بلوچستان اور اداروں کی منشیات کے خلاف بلوچستان بھر میں کارروائیاں جاری۔ قلعہ عبداللہ میں 601 ایکڑ پر کاشت بھنگ کی غیر قانونی فصل تلف کر دی گئی۔ مزید 650 ایکڑ رقبے پر بھنگ کی کاشت کے خلاف آپریشن میں تیزی۔ کارروائیاں ایف سی بلوچستان اور ضلعی انتظامیہ کے مشترکہ تعاون سے عمل میں آئیں۔ منشیات کے خاتمے اور قانون کی عملداری یقینی بنانے کا عزم۔ غیر قانونی کاشت روکنے کے لیے سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر قلعہ عبداللہ۔ رانو ریچ کراچی چڑیا گھر سے اسلام آباد منتقل۔ رانو ریچ کو 2 مرحلوں میں منتقل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد کی ریہیبلیٹیشن سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں رانو کو گلگت بلتستان کے قدرتی ماحول میں منتقل کیا جائے گا۔ رانو کی دیکھ بھال کے لیے ڈپٹی کنزرویٹو رینک کا افسر تعینات کیا گیا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچز کی ون ڈے سیریز۔ دوسرا میچ کل اقبال سٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ پہلے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 2 وکٹوں سے ہرایا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز، ٹکٹس کی آن لائن فروخت جاری۔ قیمت 200 سے 500 کے درمیان، ایک شناختی کارڈ پر زیادہ سے زیادہ 5 ٹکٹس خریدے جا سکتے ہیں۔ ون ڈے میچز 11، 13 اور 15 نومبر کو راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ ایشیا کپ میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں، سزاؤں کے اعلان میں تعصب۔ فاسٹ بالر حارث روف 2 میچز کے لیے معطل، جبکہ بھارتی کپتان پر 30% جرمانہ۔ صاحبزادہ فرحان کو آفیشیل وارننگ، ارشدیپ سنگھ کو بچا لیا گیا۔ جسپریت بمراہ کو 1 ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا۔ سعودی عرب میں اسلامی یکجہتی کھیل ریاض 2025 آغاز 7 نومبر سے ہوگا۔ ریاض 2025 گیمز میں دنیا بھر سے ایتھلیٹ شریک۔
21 नवंबर तक जारी रहने वाले खेलों में पाकिस्तान के 55 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। रियाद में इस्लामी यकजहती खेलों 2025 के सिलसिले में शानदार तकरीब। दसवीं थल जीप रैली का आगाज कल से होगा। 4 रोज रैली में मुल्की और गैर मुल्की 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर्स हिस्सा लेंगी। पहली बार जर्मन रेसर्स की भी जीप रैली में शिरकत मुतवक्के। रैली के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। और इंडोनेशिया में पुरानी गाड़ियों का अजायब घर बना दिया गया। सियाहती जजीरे बाली में गोदाम अजायब घर में तब्दील। अजायब घर को गार्डन ऑफ विंटेज कार्स का नाम दिया गया है। नुमाइश में इंडोनेशिया की पहली खातून नेवल फातिमा वती की मलकियत 1948 की प्लाई माउथ और 1917 मॉडल की एक फोर्ड भी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का आगाज करेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पायदार मुआशी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर करार देते हुए कहा है कि आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ किया है। कराची में फ्यूचर समिट के नवे एडिशन की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बरामदात का मरकज बनाना है। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। उनका कहना था कि टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। 9 लाख फाइलर्स का इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने एक मजबूत, सेहतमंद और पायदार मुआशरे की तश्कील के लिए बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना नागुज़ीर करार देते हुए कहा है कि मुकामी हुकूमतें अवामी मसाइल के हल और बेहतर तर्ज हुक्मरानी की बुनियाद होती हैं, इसलिए उन्हें फैसला साजी, वसाइल और इख्तियारात से मुस्तहकम किया जाना चाहिए। कराची में फ्यूचर समिट से खिताब में मुसद्दिक मलिक का कहना था कि निजी शोबे की तेज़ रफ्तार और वसी तौसी के जरिए इनोवेशन रोजगार के मौक़े और मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पायदार तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब कारोबार को तहकीक, जिद्दत और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आगे बढ़ाया जाए। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फ्यूचर समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि मौजूदा दौर में कोर्स करेक्शन यानी नई समत का तयन वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी समत असर नौ मुतय्यन करते हुए जिद्दत, पायदार तरक्की और बेहतर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि सिंध मुतादिद शोबों में जदीदियत की जानिब रवादवा है, ताहम टेक्नोलॉजी पार्क्स के क़याम के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन की ज़रूरत है। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत नौजवानों को जदीद तालीम और हुनरमंदी से आरास्ता कर रही है ताकि वो मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। नाज़रीन, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर हां युइंग से मुलाकात हुई है। मुलाकात दोहा में जारी समाजी तरक्की से मुतालिक दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। सदर ममलकत ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर हां युइंग से मुलाकात दोहा में जारी समाजी तरक्की से मुतालिक दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन की जानिब से हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन पर शुक्रिया अदा किया। सदर जरदारी ने कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। सदर ने CPEC के कामयाब नफाज पर चीन के ताउन को सराहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने CPEC के कामयाब नफाज में चीन के ताउन को सराहा और CPEC का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की के लिए नए दौर में दाखिल हो चुका है। उनका कहना था
کہ چین کے نائب صدر ہان جنگ نے صدر شی جن پنگ کی جانب سے نیک تمنائیں پہنچائیں. چینی نائب صدر نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں اور علاقائی امن کے لیے کردار کو بھی سراہا. چینی نائب صدر نے کہا کہ چین سے سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پاکستان کی ترقی میں تعاون جاری رکھے گا. ترقی کے منصوبے ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر، آئی ٹی، زراعت اور ووکیشنل تربیت جیسے شعبوں میں شامل ہوں گے. دونوں رہنماؤں نے باہمی احترام، اعتماد اور علاقائی خوشحالی کے ویژن پر مبنی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. دونوں ممالک نے علاقائی اور عالمی فورمز پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. صدر مملکت آصف علی زرداری کی چین کے نائب صدر ہانگ جنگ سے ملاقات. اس ملاقات میں سماجی ترقی سے متعلق دوسری عالمی کانفرنس کے موقع پر یہ ملاقات ہوئی ہے اور صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور چین آہنی بھائی اور ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے فیوچر سمٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بے پناہ پوٹینشل موجود ہے جسے درست سمت میں استعمال کرنا ہی وقت کی ضرورت ہے. گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے جہاں توانائی، معدنیات، سیاحت اور زراعت سمیت کئی شعبوں میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع موجود ہیں. انہوں نے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت اور محفوظ سرمایہ کاری کا ماحول فراہم کرے گی. تقریب سے دیگر مقررین اور ماہر معاشیات نے بھی خطاب کیا اور حکومت کی معاشی اصلاحات اور اقدامات پر تبادلہ خیال کیا. صدر مملکت آصف علی زرداری کے دوحہ میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل آنٹونیو گوتریس اور مختلف ملکوں کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں جس میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کے ساتھ جموں کشمیر کے درینہ تنازع کے منصفانہ حل کی ضرورت پر زور دیا گیا. تفصیل بتائیں گی مریم ملک. صدر آصف علی زرداری اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے درمیان دوحہ میں ہونے والی ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع اور عوامی رابطوں کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. صدر آصف علی زرداری نے 2024 میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کو دونوں ممالک کے تعلقات میں گہرائی کا مظہر قرار دیا اور کہا کہ پاکستان تاجکستان کے ساتھ تاریخی، ثقافتی اور لسانی رشتوں پر مبنی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ کاسا 1000 منصوبے کی بحالی مشترکہ خوشحالی کی جانب ایک اہم قدم ہے. صدر آصف علی زرداری نے تاجکستان کو پاکستان کے ذریعے تجارت کے نئے مواقع تلاش کرنے اور براہ راست پروازوں کی بحالی کے حوالے سے بات کی. عراق کے صدر ڈاکٹر عبداللطیف جمال رشید کے ساتھ ملاقات میں پاکستان اور عراق کے برادرانہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا. ملاقات میں تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق، بزنس ٹو بزنس روابط اور ویزا سہولتوں میں آسانی کے حوالے سے گفتگو ہوئی. صدر مملکت نے پاکستانی زائرین کے لیے عراقی حکومت کے تعاون کو سراہا. صدر مملکت نے عراق میں مقیم پاکستانی برادری کے کردار کو دونوں ممالک کے درمیان خیر سگالی کا پل قرار دیا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و استحکام اور باہمی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر عبداللطیف جمال رشید نے صدر آصف علی زرداری کو دورہ عراق کی دعوت دی. دوحہ کانفرنس کے موقع پر صدر آصف علی زرداری اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آنٹونیو گوتریس کے درمیان ملاقات میں صدر مملکت نے جموں و کشمیر کے درینہ تنازع کے منصفانہ حل اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں سیکرٹری جنرل کی قیادت اور پاکستان کے لیے ان کی مسلسل حمایت کو سراہا. صدر مملکت نے اقوام متحدہ کے امن مشنز میں پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان سے اظہار یکجہتی کی. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان عالمی امن، انصاف اور خوشحالی کے فروغ میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کی مکمل حمایت کرتا ہے. فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور 1967 سے قبل کی سرحدوں پر خود مختار ریاست فلسطین کے قیام کی ضرورت پر زور دیا. صدر آصف علی زرداری نے دوحہ پولیٹیکل ڈکلیریشن کو غربت کے خاتمے اور سماجی ترقی کے عالمی عزم کے احیاء کے لیے خوشائند قرار دیا اور کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سماجی شمولیت اور معاشی خود مختاری کے فروغ کا کامیاب ماڈل ہے. ملاقات میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کے اقدام پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت کی جانب سے معاہدہ منسوخ کرنے اور دریاؤں کے اعداد و شمار روکنے سے پاکستان میں آفات پیدا ہوئی. مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. بنایا تھا اسی اسٹیشن کو اسی مضبوطی کے ساتھ اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ پاکستان ریلوے کے میرے جو امپلائیز ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پہ سی او ریلوے عامر احمد بلوچ صاحب کو، ان کے ساتھ انعام اللہ خان جو کہ ہمارے ڈی ایس ہیں جنہوں نے دن رات یہاں پہ محنت کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بزنس کمیونٹی کے جو ہمارے بھائی ہیں جو آج سے نہیں ہیں، میرے ان سے 30-35 سالہ تعلقات ہیں جب سے ہم نے
ट्रेड सियासत शुरू की थी। मियां अदरीस साहब सतारा केमिकल से उनका ताल्लुक है और उन्होंने इस स्टेशन में इसकी रेनोवेशन में जो कंट्रीब्यूट किया है, अल्लाह ताला उसका उनको अजर देगा इंशाल्लाह ताला। ये उनका अपना शहर था। मियां साहब थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ चैम्बर के प्रेसिडेंट खड़े हैं, मेरे भाई मियां मनान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, अंसारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, बल्ली साहब हैं और बहुत सारे दोस्त अहबाब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। किसी का नाम भूल गया हूं तो मैं माज़िर खा हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, पाकिस्तान रेलवे आज वहां पे खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह 8 माह के इस अरसे में, इस 8 माह के अरसे में कि लाहौर स्टेशन देखें, कल रावलपिंडी स्टेशन का इफ्तिताह है, आज फैसलाबाद है और कराची स्टेशन तैयार है जिसका वजीर आजम पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर ओपनिंग करने जा रहे हैं, जहां पे हमारी जो रेनोवेटेड रिफर्बिश शालीमार एक्सप्रेस जो जदीद तकाजों से आरास्ता, जो इंशाल्लाह फैसलाबाद के लोगों के लिए एक तोहफा है वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से, वो मुकम्मल डिजिटाइज और सफाई और सुथराई के साथ, नए डब्बों के साथ और रिफर्बिश डब्बों के साथ इंशाल्लाह ताला कोचेस के साथ चलना शुरू हो जाएगी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर उसका इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद हजारा एक्सप्रेस, आवाम एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल, तमाम चलने वाली जितनी ट्रेन है उसकी अपलिफ्टिंग है। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 4 रैक जो है हमने अपलिफ्ट कर दी हैं। नारोवाल सेक्शन, उसके 4 रैक जो है जनवरी एंड तक सारे मुकम्मल हो जाएंगे, यानी रिफर्बिश हो जाएंगे। और हमारे 5 से 6 स्टेशन के अंदर वाईफाई जो है वो आम लोगों के लिए हमने लगा दी है, जहां पे 70 से 80 फुट का फुटफॉल है, 80% फुटफॉल है जो हमारा फुटफॉल है इन 5-6 स्टेशन के ऊपर है, जिसमें कराची है, जिसमें मुल्तान है, लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, सब पे अल्हम्दुलिल्लाह वाईफाई जो है वो लग गया है। लेकिन मेन तमाम सेक्शंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे दिन रात मेहनत करके मेरे मजदूर ने, मेरे इंजीनियर ने जो ब्रीच किया हुआ फ्लड के दौरान हमारा सेक्शन था, जिसे आप शोरकोट और फैसलाबाद का सेक्शन कहती हैं, उस पर बड़ी मेहनत की है। बातें करना बहुत आसान काम है। 1.5-2 माह पहले इस स्टेशन को हमने देखा था, आपके साथ देखा था, आज आप खुद देख रहे हैं। फैमिली हॉल से लेके आम हॉल तक, यानी 500-600 बंदा यहाँ खप सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ खड़ा हो सकता है, यहाँ आसानी के साथ यहाँ बैठकर अपनी सवारी का इंतजार कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ 2 से 3 और चीजों के ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान का फोकस था, जिसपे हम चल पड़े हैं। यानी कराची रोडी 500 किलोमीटर का जो सेक्शन है बड़ा पैथेटिक है, आज भी पैथेटिक है। आप कहते हैं जी गाड़ी नीचे उतर आती है, फिर गाड़ी को हम पकड़ के ऊपर उसको लेके जाते हैं, ये आप सबको पता है, मुझे भी पता है। जब तक ये 1861 का बना हुआ ट्रैक है, 1870 1880 का ट्रैक है, लेकिन इस 500 किलोमीटर को, जो कि हमारी मेन आर्टरी है, वजीर आजम पाकिस्तान ने सबसे पहले इसको चुना और $2 बिलियन की जो फंडिंग है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाइनल हो चुकी है, अप्रूवल के लिए उनके बोर्ड के पास पड़ी है। मुझे अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद है, जैसे यहाँ वादे में करके रहता हूँ, जहां जहां जाता हूँ दोबारा जाता हूँ तो शर्मिंदगी नहीं होती कि मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो 2026 जून में हम उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेंगे। और जब हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेंगे मेरे भाइयों, 5 घंटे का फर्क पड़ेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद 2.5 साल के अरसे में हमने वो मुकम्मल करना है। 884 किलोमीटर चागी जो मिनरल्स हैं, जहां पूरी दुनिया जो है टूट पड़ी है पाकिस्तान के साथ कारोबार करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, पूरी दुनिया टूट पड़ी है। वो वजीर आजम के विजन के मुताबिक 884 किलोमीटर का जो पोर्शन है नोकुंडी से रोडी तक का, उसके लिए 400 किलोमीटर का नया ट्रैक और 484 किलोमीटर का 484 किलोमीटर का अपलिफ्टिंग जो है $400 मिलियन की लागत से इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है जनवरी फरवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग उसकी शुरू हो जाएगी अल्लाह ने चाहा। और उसके नतीजे में वो भी हमारा 2 से 2.5 साल का टाइम है 884 किलोमीटर का,
वो सेक्शन भी हमारा तैयार हो जाएगा। अभी कल मैं सीनियर मिनिस्टर पंजाब के पास मीटिंग में था, लाहौर रावलपिंडी, बल्कि लाहौर से आगे मुल्तान भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम वो सेक्शन भी उठाएंगे और उनकी समरी जो है, जो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, उस सेक्शन को नया बनाने के लिए, यानी वो सिंगल ट्रैक है लाहौर से रावलपिंडी का, उसका डबल ट्रैक और उसके साथ साथ उसको नया ट्रैक, तो हम इंशाल्लाह रावलपिंडी से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी, मैक्सिमम इन्हीं ट्रेनों के ऊपर जो ट्रेन मेरे पास इस वक्त बन रही है 160 किलोमीटर के पर आवर के हवाले से, इंशाल्लाह 2.5 घंटे में हम लाहौर हुआ करेंगे, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। अब इन सारे सेक्शंस के ऊपर काम करने के साथ साथ हमने आउटसोर्सिंग का काम शुरू किया। और देखिए, सबसे पहले 2-3 चीजें जो मैंने रेलवे के मजदूर अपने भाइयों के लिए की, अफसरान के लिए नहीं, अपने मजदूर के लिए की, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यानी अभी 14 स्कूलों में से हमारे 3 स्कूल आउटसोर्स हुए और 3 होने जा रहे हैं 2-3 दिनों में, या 10 दिनों में, या 15 दिनों में। वो स्कूल जो है जिसमें मेरा बच्चा आज जब जाता है तो 800 रुपया या 1000 या 1500 रुपया वो फी देता है, लेकिन बैठने की जो जगह है वो एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। अब इंशाल्लाह ताला वो जो 3 स्कूल अवार्ड कर दिए हमने, एक कराची का है उसमें से, और 2 लाहौर के हैं, और 3 लाहौर के और करने जा रहे हैं। वो एक एयर कंडीशन माहौल में बैठेगा, 60,000 वाले पे बैठेगा, 70,000 वाला फीस लेने वाले पे बैठेगा, महसूस नहीं होगा कि मेरे मजदूर के बच्चे में और 70,000 रुपया फीस देने वाले में कोई फर्क है, कोई महसूस नहीं होगा। उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, एनवायरनमेंट मिलेगा। हॉस्पिटल इंशाल्लाह ताला जो 100% ट्रीटमेंट होगा, जब ये हमारे हॉस्पिटल आउटसोर्स होंगे और होने जा रहे हैं, मेरे मजदूर का ट्रीटमेंट, उनके वालिदैन का, उनके बच्चों का, उनका अपना 100% इनडोर ट्रीटमेंट जो है 100% फ्री होगा। अगर 10 लाख का ऑपरेशन है फ्री है, 20 लाख का है फ्री है। इसके साथ साथ 300 पैसेंजर को लेके जाने वाला जहाज, उसका पायलट तो रहे 5 स्टार होटल में, उसका क्रू तो रहे 5 स्टार होटल में, मेरा गार्ड, मेरा ड्राइवर रहे। ऐसे पैथेटिक सूरत हाल में मियां साहब, आप हैरान हो जाएंगे, वो रनिंग रूम जो है हमारे, उसके अंदर बाथरूम नाम की कोई चीज नहीं, उसके अंदर कोई एसी नाम की चीज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे भाइयों की कोऑपरेशन से 10 इनिशियली हम जो टॉप प्रायोरिटी पे हमने रख के फैसला किया है, विद इन 6 मंथ हम उनको मुकम्मल करेंगे, जहां पे एयर कंडीशन माहौल होगा, गर्मियों में इंशाल्लाह सर्दी वाला माहौल और सर्दियों में गर्मी वाला माहौल, और पूरी उनकी एनवायरनमेंट को हम चेंज करेंगे, उनके बाथरूम, उनके रहने की जगह। वो मेरा जो ड्राइवर है वो 1100 पैसेंजर को लेके जाता है, अगर उसको हम अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो वो हमारे लिए क्वालिटी सर्विसेज देगा। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। इंशाल्लाह ताला इसी तरह हमने फ्रेट के ऊपर जो कामयाबी पिछले दिनों हासिल की है, सीओ साहब खड़े हुए हैं, मैं बार बार इनको मुखातिब करता हूं, मेरी आदत किसी के साथ भी मुनाफिकत की नहीं है। मैं कहता हूं जो अच्छा काम करेगा, मेरा इतना बड़ा दिल अल्लाह ने दिया हुआ है, मैं उसको इतने काम को इतना बताऊंगा, और जो जरा सी भी हैंकी फैंकी होगी वहां पे कोई माफी नहीं है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों जो लगेज वैन, ब्रेक वैन, कार्गो एक्सप्रेस की जो हमने आउटसोर्सिंग के हवाले से और ओपन ऑक्शन के हवाले से जो वजीर आजम की पॉलिसी है, हम गए हैं, हमें 10 बिलियन का इसी फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा। इसके साथ हम न्यू कार्गो सर्विस एक और चलाने जा रहे हैं, 3 कोल की नई ट्रेन चलाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारी सर्विसेज हैं इनके लिए हेडक्वार्टर में एक फैसिलिटेशन सेंटर हो, जहां मेरा कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास क्लाइंट की सूरत हाल में आए, क्लाइंट मेरा उस क्लाइंट को हम समझे कि ये मेरा गाहक है। जिस तरह ये राइट लेफ्ट खड़े हुए बिजनेसमैन जो है ये अपने क्लाइंट की खिदमत करते हैं, इस तरह मेरे रेलवे के लोग उनको सर्विसेज दें। ये सारी चीजें इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे के अंदर होने जा रही, हो गई हैं, होने जा रही हैं। और मैं आपको ये इस पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से चंद गुजारिशात करूंगा। देखिए, दुश्मन ने
وہ جو اپنے زخم شکست کے چاٹ رہا ہے، ابھی وہ آرام سے نہیں بیٹھا، کیونکہ دنیا میں اکیلا ہو گیا ہے۔ الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان کی خارجہ پالیسی اور فیلڈ مارشل کی پوری دنیا کے اندر جو دھاک اس وقت بیٹھی ہے، وہ تو 78 سال پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ ہم نے بہت کچھ دیکھا۔ 10 مئی سے پہلے پاکستان کا وہ مقام نہیں تھا جو آج ہمارے شہداء کی بدولت، ہمارے شاہینوں کی بدولت، ہمارے آرمی چیف کی بدولت اور وزیر اعظم پاکستان کی کامیاب ترین خارجہ پالیسی کے نتیجے میں چائنا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، یو ایس اے بھی، رشیا بھی، میڈل ایسٹ کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، سینٹرل ایشیا کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا اور کیا مقام ہے؟ اب ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، کیونکہ دشمن نے بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر جو وار کرنے شروع کیے ہیں پراکسی کے ذریعے، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ میرا پختون میرے ماتھے کا جھومر ہے، میرا بلوچ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا پنجابی، میرا سرائکی، میرا کشمیری، میرا سندھی، ہم سب ایک ہیں۔ کل میں نے جب پاسنگ آؤٹ پریڈ کو دیکھا، معائنہ کیا، تو پورے پاکستان کی سلیکشن تھی۔ مجھے پورا پاکستان ان 500 بچوں اور بچیوں میں نظر آیا، لیکن جو کشمیری پاکستان کو نہیں مانتا نا، میں اس کو نہیں مانتا۔ جو بلوچ، پنجابی، پختون جو پاکستان کی بات سندھی نہیں کرے گا تو میں اس کو نہیں مانتا، یہ پاکستان کو مانتا ہوں، اس کی اکائی کو مانتا ہوں، اس کے اندر رہنے والے ساروں کی عزت احترام ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور الحمدللہ پاکستانی قوم مل کر ہمیشہ دشمن کو اس نے شکست دی ہے اور اب بھی دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ اپنے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ یہ جو فیسیلیٹیٹر کون ہے؟ فیسیلیٹیٹر ہم ہیں۔ یہ جو کے پی کے اندر آج لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، دہشت گردی ہے، کس نے لا کے بسائے تھے؟ وہ 40,000 دہشت گرد جس کو خود بانی پی ٹی آئی مانتا ہے، اب ویڈیوز نکالے سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، 40,000 لوگوں کو ہتھیاروں کے ساتھ، ویپنز کے ساتھ پاکستان میں لایا گیا۔ آج وہ وبال جان بنے ہوئے ہیں، آج وہ ہماری فورسز پہ حملہ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہاں کے لوکل کے ساتھ جو وہاں کی حکومت ہے، کہتی ہے آپ نے ان دہشت گردوں کو کچھ نہیں کہنا، دہشت گرد آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ حملہ کریں گے فوج پہ، ایف سی پہ، پولیس پہ۔ تو میرے بھائیوں، کیا ایسے لوگوں کو آپ پاکستانی کہہ سکتے ہیں؟ کیا آج میں یہاں فیصلہ آباد میں کھڑا ہوں، ابھی راول پنڈی پہنچوں گا اللہ کے فضل و کرم سے، تو شام کو اگر میں کسی ریسٹورنٹ میں جاؤں گا، کسی واک والی جگہ پہ جاؤں گا، کسی اپنے گھر میں جا کے آرام سے سوؤں گا، تو یہ کس کی بدولت ہے؟ میرے ان شہداء کی بدولت ہے جو ان سرحدوں کے اوپر اپنا گرم گرم لہو دے رہے ہیں۔ یہ بلوچستان کے سگلاخ پہاڑ ہوں یا برف پوش پہاڑ ہوں کے پی کے، ان پہ اپنی بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے قربان کر کے وہ وہاں پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ کسی کی 2 سال کی بیٹی ہے، کسی کی بوڑھی ماں ہے، کسی کی جوان بیوہ ہے، تو بات کرتے ہوئے جب آپ کچھ بدبخت جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے بھی بہت کچھ سہا ہے، ہم نے نہیں سہا، میرے قائد نے جلا وطنی نہیں سہی، عمر قید میرے قائد کو نہیں ہوئی، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ہمیں عمر قید نہیں ہوئی، ہم نے تو رات کی تاریکی میں بھی، ہم نے تو رات کے اس 6x6 کے سیل میں بھی خدا کی قسم کبھی پاکستان کا برا نہیں سوچا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی اپنے شہید کو برا بلا نہیں کہا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک ایسی مخلوق پیدا ہوئی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں انارکی پیدا ہو، پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو، تو ہم اقتدار میں آ جائیں۔ آپ نے پہلے سوچا 9 مئی کو کہ انسٹیٹیوشن میں بغاوت ہوگی، ہم 10-20 ہزار باہر سے جائیں گے تو پاکستان میں ہمارا اقتدار آ جائے گا۔ پھر کہا فلاں صدر بنے گا تو میں اقتدار میں آ جاؤں گا۔ پھر کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو گئی ہے، اس کے اندر پاکستان کو مار پڑے گی، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، تو میں اقتدار میں آ جاؤں گا۔ یہ کیسی خواہش ہے؟ پاکستان کی سالمیت کے اوپر کمپرومائز کر کے؟ نہیں میرے دوستو، میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان
किसी का मरहून मिन्नत नहीं है। मैं भी आज कहता हूं, बार बार कहता हूं, वो कोई लीडरशिप हो जो पाकिस्तान की सालमियत पे कंप्रोमाइज करेगी, हम किसी तौर पे किसी को नहीं मानेंगे। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है फूलों का, जिसके अंदर हम सब कौमें जो हैं वो उसमें अंदर हैं। इंशाल्लाह ताला इस पख्तून को, बलोच को, सिंधी को, कश्मीरी को, मैं बड़ा अफसोस होता है कभी जब ये अल्फाज सुन रहा होता हूं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन की फलाह बहबूद तरजीह है। पाकिस्तान रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। नाज़रीन, एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जिला खैबर में इंसदाद मनशियात की कामयाब कार्रवाई। मुसद्दका इंटेलिजेंस इत्तलात पर मनशियात की भारी खेप कब्जे में ले ली गई है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जिला खैबर में इंसदाद मनशियात की कामयाब कार्रवाई। मुसद्दका इंटेलिजेंस इत्तलात पर मनशियात की भारी खेप कब्जे में ले ली गई। जिला खैबर के पथरीले इलाके शाक्स में छुपाई गई 144 किलोग्राम चरस बरामद कर ली गई है। मनशियात रात की तारीकी में मुल्क के बेशतर हिस्सों में स्मगल की जानी थी। मनशियात बाड़ा के एक बदनामे जमाना मनशियात फरोश गिरोह की मलकियत हैं। ताने बाने तीरा से मिलते हैं। नाज़रीन, अहम खबर आपको दे रहे हैं एंटी नारकोटिक फोर्स की इंसदाद मनशियात की कामयाब कार्रवाई के हवाले से। मुसद्दका इंटेलिजेंस इत्तलात पर मनशियात की भारी खेप कब्जे में ले ली गई है। जिला खैबर के पथरीले इलाके में छुपाई गई 144 किलोग्राम चरस बरामद की गई है। मनशियात रात की तारीकी में मुल्क के बेशतर हिस्सों में स्मगल की जानी थी। मनशियात बाड़ा के एक बदनामे जमाना मनशियात फरोश गिरोह की मलकियत है और ताने बाने तेरा से मिलते हैं। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं एंटी नारकोटिक फोर्स की जिला खैबर में इंसदाद मनशियात की कामयाब कार्रवाई। मुसद्दका इंटेलिजेंस इत्तलात पर यह मनशियात की भारी खेप कब्जे में ले ली गई है। कामयाब कार्रवाई की गई है। एंटी नारकोटिक फोर्स ने जिला खैबर में इंसदाद मनशियात के हवाले से जिला खैबर के पथरीले इलाके में छुपाई गई 144 किलोग्राम चरस बरामद की गई है। मनशियात रात की तारीकी में मुल्क के बेशतर हिस्सों में स्मगल की जानी थी। मनशियात बाड़ा के एक बदनामे जमाना मनशियात फरोश गिरोह की मलकियत हैं और ताने बाने तीरा से मिलते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम उस्सानी से दोहा में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत के फ़रोग़ और सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने इसराइली जारहियत के दौरान कतर की जानिब से कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को सराहा और कतरी क़यादत के मुस्बत किरदार की तारीफ़ की। कतर के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफ़वाज की जुर्रत और बहादुरी को सराहा और कहा कि पाकिस्तान ने हालिया पाकिस्तान भारत तनाज़ात में जिस दिलेरी का मुज़ाहरा किया वो काबिल फ़ख्र है। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि अफ़गानिस्तान में जारी इक़दामात से ख़ित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम कायम होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के कामयाब इन्नकाद और शानदार इंतजामात को भी सराहा। उन्होंने कतरी क़यादत को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। कतर के वज़ीर आज़म ने बताया कि उनका मुल्क पहले ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी कर रहा है और मुस्तक़बिल में सरमायाकारी के हजम में मज़ीद इजाफा करेगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान को मीडिया के शोबे में ताउन से एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का मौका मिलेगा। तफसील बताएंगी नमरा सोहेल। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन और ईरान ब्रॉडकास्टिंग के दरमियान मीडिया के शोबे में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब इस्लामाबाद में हुई। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिमा शेख और ईरान ब्रॉडकास्टिंग के नायब सदर अहमद नौरोजी ने यादाश्त पर दस्तखत किए। तकरीब के दौरान पैमरा और ईरानी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के दरमियान भी मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए। ईरानी मीडिया और 3 निजी पाकिस्तानी इदारों के दरमियान भी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि मीडिया के शोबे में ताउन दोनों ममालिक के अवामी रवाबित समेत दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। I am happy that we are taking our media cooperation further in solidarity as we have one vision of success and prosperity for our people. These agreements being signed will be translated into action and we will cooperate in these fields. We will learn from your experiences. We look forward to cooperation in the digital media field as well. अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ईरान पर सेहूनी जारहियत के दौरान ईरानी कौम की जुर्रत को पाकिस्तान इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। When this recent attack on Iran took place, the Pakistani people
the Pakistani nation, the Pakistani government, all expressed their solidarity with the government and the people of Iran in whatever way that they could. Our media was very vibrant in not only expressing solidarity, but also in showing that what the Irani people stood for. The people of Iran, they are courageous in the face of adversity, in the face of oppression, and they don't bow down so easily. ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन खुशाइंद है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिया समेत तमाम शोबों में ताउन की काविशों पर इजहार तशक्कुर किया। ईरान ब्रॉडकास्टिंग के नायब सदर अहमद नौरोजी ने कहा कि दोनों मुल्क ताल्लुकात की नई जहद की तरफ गामजन हैं। ईरान पाकिस्तान के साथ मीडिया के शोबे में ताउन को नई बुलंदियों पर ले जाने का ख्वाहिशमंद है। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए ईरानी वफ्द के अरकान को सोवेनियर्स पेश किए गए। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बाबा गुरु नानक देव जी अमन, रवादारी और मसावात के लंबरदार थे। सदर ममलकत ने अपने पैगाम में बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु नानक की तालीमात मोहब्बत, खिदमत इंसानियत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का अजीम दर्स देती हैं। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के क़याम के जरिए सिख यात्रियों के लिए वीज़ा फ्री रसाई मुमकिन बनाकर मजहबी रवादारी की मुनफरिद मिसाल कायम की। पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मुक़द्दस मक़ामात की देखभाल यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन के मौके पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाली सिख बिरादरी को दिली मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि बाबा गुरु नानक न सिर्फ सिख मजहब के बानी और अकाबरीन में से थे, बल्कि वो एक अजीम मुसल्ले और नजरियाती रहनुमा थे, जिन्होंने पूरी इंसानियत के लिए अमन, बराबरी, रवादारी, मोहब्बत, बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी और बर्दाश्त का पैगाम दिया, जो एक मुनसिफाना और पुरअमन दुनिया के क़याम के लिए मशाल राह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तमाम मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर कायम है और हर साल दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों की सहूलत के लिए तमाम इंतज़ामात करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर अपने पैगाम में दुनिया भर की सिख बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि गुरु नानक इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के लंबरदार थे, जिन्होंने हमेशा एक दूसरे के दुख सुख बांटने का प्रचार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में सिख बिरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत गुरुद्वारों की देखभाल, तज़ीन और आइश और सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत सूबे के हर शहरी के लिए मुसावी सहूलतों और हुकूक़ के अलंबरदार है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। उन्होंने कहा कि हमें मिलजुल कर पाक सरजमीन को अमन, सलामती और रवादारी की मिसाल बनाना है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी दिन है। सिख बिरादरी अपने रूहानी पेशवा के जन्मदिन की खुशी में नगर कीर्तन निकालकर मजहबी जोश व अक़ीदत का इजहार करेगी। गुरुद्वारा जन्म स्थान में मौजूद अपने नुमाइंदे जावेद अहमद माविया से मज़ीद तफसीलात ले लेंगे। जी जावेद, बताइएगा। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में जारी है। आज इन तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज है और आज इन तकरीबात का मरकजी प्रोग्राम नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी है। आज होने वाली मरकजी तकरीब में वफाकी और सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ओहदेदारान और हजारों सिख यात्री शिरकत करेंगे। मरकजी तकरीब के बाद बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की खुशी में गुरुद्वारा जन्म स्थान से गुरुद्वारा कैला साहब तक नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जिसमें दुनिया भर और अंदरूनी मुल्क से आए हुए सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हुए शरीक होंगे। ज़िले इंतजामिया की तरफ से नगर कीर्तन की सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज्यादा पुलिस, इलीट फोर्स और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारों के एहलकार ड्यूटी के फराज सर अंजाम देंगे। गुरुद्वारा जन्म स्थान समेत तमाम गुरुद्वारों और नगर कीर्तन की गुजरगाहों को अर्के गुलाब से धोकर इस पर सूरज कालीन बिछाया गया है। नगर कीर्तन में शरीक हजारों सिख यात्री ननकाना साहब शहर में वाक़िया सातों गुरुद्वारों की यात्रा और वहाँ मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद शाम को वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुँचेंगे, जहाँ दीगर मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद ये तकरीबात अख्तिताम पजीर होंगी। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब।
और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में नादरा सेंटर, फहद टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, डेरा गुजरां शालीमार के अचानक दौरे करके शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने नादरा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद शहरियों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। मोहसिन नकवी ने व्हील चेयर पर आई बुजुर्ग खातून की दस्तावेजात को बिला ताखीर प्रोसेस करने की हिदायत की और कहा कि खुसूसी अफराद का खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ काम फिलफौर निपटाया जाए। वज़ीर दाखिला के शहरियों से नादरा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस में सर्विसेज के बारे में इस्तफसार पर शहरियों का कहना था कि पासपोर्ट बनवाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, बारी जल्दी आ जाती है, अमले का रवैया भी अच्छा है, सही तरह रहनुमाई करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड और दस्तावेजात से मुताल्लिक काम तेजी से निपटाने की हिदायत करते हुए कहा कि शहरियों को अपनी दस्तावेजात के हुसूल में किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नादरा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस आने वाले हर शहरी का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए और दस्तावेजात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। वफाकी वज़ीर बराए IT और टेलीकॉम शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने 26वें साउथ एशियन टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन का तसलसल है, जबकि डिजिटल पाकिस्तान का बुनियादी सुतून मजबूत और जामे कनेक्टिविटी है। शिज़ा फातिमा के मुताबिक जनूबी एशिया डिजिटल तरक्की के अहम मरहले पर है और इलाकाई तरक्की के लिए डिजिटल ताउन नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि कनेक्ट पाकिस्तान 2030 के तहत हर घर तक तेज रफ्तार इंटरनेट पहुंचाने का हदफ है और टेलीकॉम सेक्टर अब तक 1.5 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद कौमी खजाने में अदा कर चुका है। SIFC के ताउन से ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव का पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर के लिए तारीखी इक़दाम, क्लाउड एग्री ग्रुप के इश्तराक से अमरीका से दरामद शुदा मवेशी कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव जदीद ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, जीनियाती बेहतरी और मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम्स के जरिए मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है। क्लाउड एग्री ग्रुप के इश्तराक से अमरीका से मवेशी दरामद किए जा रहे हैं। इक़दाम से दूध की पैदावार और डेयरी मसनूआत की बरामदात में खातिर खा इजाफा मुमकिन होगा। 2024 में भी GCLI के तहत ब्राज़ील से आला नस्ल के मवेशियों की खेप पाकिस्तान पहुंचने पर बेहद पजीराई मिली। SIFC की मुआवनत से इस अहम मंसूबे में सरमायाकारी और बैनुल अक़वामी शराकत दारी को मुमकिन बनाया। और अब आपको बताएंगे कि अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क की सियासत में नई तारीख रकम। ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान और जनूबी एशियाई नयाद मेयर मुंतखब हो गए। तफसील बताएंगे अरसलान असद। न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब में 34 साल डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़हरान ममदानी ने कामयाबी हासिल करते हुए कई नए रिकॉर्ड भी बना दिए। 1991 में युगांडा में पैदा होने वाले और बचपन में न्यूयॉर्क मुंतकिल होने वाले ज़हरान ममदानी अमरीकी सदर के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रियो कोमो को वाज़ेह फर्क से शिकस्त देकर 84 लाख से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल न्यूयॉर्क शहर के मेयर मुंतखब हो गए। वो गुज़श्ता 100 बरसों में न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र मेयर होंगे। अपनी पहली तकरीर में ज़हरान ममदानी ने कहा कि ये तमाम जमहूरियत पसंदों की फतह है। अमीरों का शहर कहलाने वाले न्यूयॉर्क को वर्किंग क्लास के रहने के काबिल बनाऊंगा। Thank you to the next generation of New Yorkers who refused to accept that the promise of a better future was a relic of the past. You showed that when politics speaks to you without condescension, we can usher in a new era of leadership. We will fight for you because we are you. ज़हरान ममदानी का ताल्लुक मुतवस्सित खानदान से है। उनके वालिद महमूद ममदानी सियासत के माहिर प्रोफेसर, जबकि उनकी वालदा मीरा नायर भारत में फिल्म साज रह चुकी हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम आम लोगों के मसाइल के गिर्द घूमती रही। महंगी रिहाइश, बढ़ती हुई कीमतें, महंगाई और सबके लिए काबिल रसाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब वो मौज़ूआत थे जो उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में उजागर किए। ममदानी की सादा मगर पुरजोश मुहिम ने अक़लियतों, नौजवानों और इमिग्रेंट आबादी का दिल जीत लिया। ज़हरान ममदानी 1 जनवरी को अपना ओहदा संभालेंगे। उनकी कामयाबी सिर्फ एक इंतखाब ही नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि अमेरिका में मौरूसी सियासत की बजाय अब नई नस्ल आगे आ रही है और न्यूयॉर्क का ये नया चेहरा एक नए बाब की शुरुआत है। असलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इसराइल की जानिब से गजा में खुराक समेत इमदादी सामान की फराहमी में मुसलसल रुकावटों का सिलसिला जारी है। जंग बंदी के बाद भी फ़लस्तीनियों की खुराक तक रसाई में कोई बेहतरी नहीं आई है। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक ये इंकशाफ गजा में मुकीम निस्फ से ज़ायद घरानों ने अक़वाम मुत्तहिदा के एक सर्वे में किया है। गजा में 24 लाख से ज़्यादा अफराद को भूख और ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। इसराइली फोर्सेस की तरफ से जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं। फ़लस्तीनी वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस शिमाल में वाक़ शफ़ात पनाह गज़ीन कैंप पर भी छापा मारा और आंसू गैस का अंधाधुंध
इस्तेमाल किया। सिहूनी हुकूमत ने इसराइली जेलों में शहीद होने वाले 45 फलस्तीनियों की मैयतें वजारत सेहत के हवाले की हैं। उधर इसराइली फोर्सेस की तरफ से लेबनान पर फसाई हमलों में भी 2 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में फोर्ब्स मिडल ईस्ट के ज़ेर तमाम शहजादी नूर बिनते मोहम्मद आल सऊद की सरपरस्ती में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक समिट मुनाक़िद हुई। समिट में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने कारोबारी हिकमत अमली, मुआशी खुद मुख्तारी और सऊदी विजन 2030 में ख़वातीन के किरदार पर गुफ्तगू की। शुरका ने कहा कि ऐसे इवेंट्स ख़वातीन को तरक्की के मौक़े और माशरती शमूलियत के लिए हौसला देते हैं। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी कोयटा में पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ स्टॉल्स का दौरा किया और तलबा की काविशों को सराहा। इस मौके पर सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पानी अल्लाह की कीमती नेमत है, इसके दुरुस्त इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामी और साइंसी उसूल अपनाना ज़रूरी है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर मार्का हक में कामयाबी के बाद उम्मत मुसलमान का एक मजबूत मुल्क बनकर उभरा है और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ़ है। आखिर में शुरका को शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिए गए। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम बन्नू के इलाके जानी खेल में अमन अमान के क़याम के लिए कबायली मैदान का जिरगा मुनाक़िद हुआ। जिरगे में जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने शिरकत की और कबायली रहनुमाओं के किरदार को सराहा। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी की रोकथाम और फलाही मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। GOC मिरान शाह ने कहा कि आवाम के ताउन से खित्ते में अमन और तरक्की का सफ़र जारी है। कबायली अमायदीन ने हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भरपूर ताउन के अज़्म का इज़हार किया है। उधर बलोचिस्तान में FC और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कला अब्दुल्ला में बड़ी मिकदार में गैर कानूनी भंग की फसल तलब कर दी गई है। मजीद 650 एकड़ रकबे पर भंग की गैर कानूनी काश्त के खिलाफ भी ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर कला अब्दुल्ला का कहना था कि गैर कानूनी फसल की दोबारा काश्त रोकने के लिए सख्त निगरानी जारी रहेगी। यौम शहदाए जम्मू, इंसानियत के कातिल भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करने का दिन है। नवंबर 1947 में मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती सरपरस्ती में जुल्म बर्बरियत का स्याहबाब रकम हुआ। भारतीय रियासती दरिंदों ने जम्मू कश्मीर में 120 से जायद मुसलमानों के गांव सफाई हस्ती से मिटा दिए। 1947 से पहले जम्मू कश्मीर की 61% आबादी मुसलमान थी, मगर 6 नवंबर 1947 की कत्लो गारतगरी ने उसे अक़लियत में तब्दील कर दिया। 123 से जायद मुस्लिम गांव मुकम्मल तौर पर खाली कर दिए गए। जुर्म सिर्फ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम चाहते नवंबर 1947 जम्मू की फिजाएं चीख उठी, गांव जला दिए गए, मसाजिद खाकस्तर कर दी गई। मौत सामने मगर हौसले जवां और सदाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम क्या चाहते हम क्या चाहते हम देते रहेंगे भारत से। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत कालाम -4, लह -2, गोपिस, एस्तोर और ज़ियारत में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 2 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। इकबाल स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका का 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 264 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह और इब्रार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि साइम अयूब ने 2, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट ली। जवाब में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका का 264 रन का हदफ 49.4 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। सलमान अली आगा 62 और मोहम्मद रिजवान 55 रन के साथ नुमाया रहे। सीरीज का दूसरा वनडे कल फैसलाबाद में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त जारी है। एक शनाख्ती कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 टिकट्स खरीदे जा सकते हैं। तीनों वनडे मैचेस 11, 13 और 15 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। जनरल इंक्लोजर्स के टिकट की कम से कम कीमत 200 रुपये रखी गई है। फर्स्ट क्लास इंक्लोजर्स के टिकट 300 रुपये, प्रीमियर इंक्लोजर्स के टिकट 400 रुपये और VIP इंक्लोजर्स के टिकट्स 500 रुपये में दस्तयाब हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर खिलाड़ियों पर तासुबज़दा सज़ाओं का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 मैचेस के लिए मुअत्तल हो गए। हारिस रऊफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के इब्तदाई 2 मैच नहीं खेल सकेंगे। मजमूई तौर पर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 60% जुर्माना आयद किया गया। खेल की रूह को नुकसान पहुंचाने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया गया और 2 डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए। साहिबजादा फरहान को ऑफिशियल वार्निंग के साथ 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। तमाशाइयों की जानिब से गैर इखलाकी इशारा करने के बावजूद ICC ने अर्शदीप सिंह को बचा लिया। खेल की रूह को नुकसान पहुंचाने पर भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह को 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। नाज़रीन, हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट 7 नवंबर से शुरू होगा। कौमी टीम इवेंट में शिरकत के लिए हांगकांग पहुंच गई है। मैचेस 9 नवंबर तक हांगकांग के टिन वॉर्न रिक्रिएशन ग्राउंड में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 3-3 के 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान ग्रुप C में है। अब्बास आफरीदी कौमी टीम की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्क्वाड में अब्बास आफरीदी कप्तान, अब्दुल समद ख्वाजा, मोहम्मद नाफे, मुअज़्ज़ सदाकत, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद, शाहिद अजीज और रजा किचलो शामिल हैं। खेल का अहवाल आपने जाना, आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया रुमैसा। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए इजाज़त। मुख्तसर वक्फे के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस न्यूज़ के साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त